Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a poem of 8th Standard English Medium, Unit 3, 3.1, The Plate of Gold. This poem is written by James Henry Leigh Hunt. It is a narrative poem. Here, a story is told in the form of a poem. These poems usually do not have any rhyming scheme or any rhyming pattern. They are in free verse. Before we move ahead with the explanation, do hit the like button, and if you are new to my channel, please do subscribe it and share it with your friends. So my dear students, as you all know, I shall be providing you with the question and answers of the chapters, lessons, poem and the warming up exercises and the margin question answers too. So this time I am not going to give it in the video, but instead you can find the link in the description box of the same. So you will be having an entire PDF of question and answers in the description box. So you can either download it or you can copy it down in your books. So let's start with the poem. As it is a long poem, it will take us time. So please have patience and listen a beautiful story on deeds of kindness. Now this is the plate of gold. I shall be explaining you more of in Hindi language and less in English because there are many students who are unable to understand English. Proper English they are unable to understand, and therefore for them I am going to explain it in Hindi as well as in English. So this part I have, as I already said, I will be doing it in the description box. There is a link, you can find the answers over there. The plate of gold. Now this plate of gold, one day there fell in great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ, to him who loveth best, a gift from heaven thereat. So this paragraph means कि एक दिन ग्रेट बनारस एक सिटी है इंडिया में, वहाँ के एक टेम्पल के कोर्ट में, टेम्पल कोर्ट मतलब टेम्पल का जो खुला स्पेस होता है, वहाँ पर एक बहुत ही वंडरस ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ गोल्ड जो है वहाँ गिरी, और उस प्लेट के ऊपर वेयर ऑन मतलब उस प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था ये वर रिट, मतलब रिट WRIT रिट, दैट मीन्स लिखा हुआ था, रिटन. दिस इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड रिट. इसको हम आर्कियक वर्ड्स भी कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स और आर्कियक वर्ड्स. टू हिम हु लविथ बेस्ट. तो क्या लिखा हुआ था उस प्लेट में कि ये प्लेट उसको मिलनी चाहिए जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यानी मुझे गॉड को जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको ये प्लेट मिलनी चाहिए. ये प्लेट उस इंसान के लिए गिफ्ट है, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. हेवन मीन्स फ्रॉम द गॉड. The priests made proclamation at the midday hour, each day let those assemble who for virtue deem their rights to the heavens gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudge. Now the priest जो मंदिर के पुजारी थे, priests, they made an proclamation. Proclamation मतलब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ऐसी एक प्लेट हमको गॉड की गिफ्ट मिली है और ये उसी इंसान के लिए होगी जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यार करता है. तो आप लोगों ने अगर कुछ अच्छा काम किया हो जिससे आपको लगता है कि आप गॉड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए आप ये अच्छा काम कर रहे हो, तो आप लोग आके हमें बता सकते हो. फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसे ये प्लेट देना है, कि कौन सबसे बेस्ट है या कौन सबसे ज़्यादा गॉड को प्यार करता है. दैट हम ये डिसाइड करेंगे. सो एट द मिड डे आवर ईच डे, यानी ये कब होगा डिसीजन? मिड डे आवर रोज़, यानी 12 o'clock. मिड डे आवर मतलब दोपहर टाइम जो है, मिड डे अपना होता है 12 o'clock, वो हम कहते हैं. उस रोज़ मिड डे पर आप लोग आइए, अपने अपने जो भी आपने डीड्स किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसे बताइए, और उन्हें बताकर हम पता करेंगे कि वाकई में आपका हक है कि नहीं. योर राइट इज़ देयर ऑन दिस प्लेट और नो, एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन. ना आप हमें सुनाइए और हम ये सुनेंगे आपका, और फिर हम डिसाइड करेंगे. टू एडजज. टू एडजज मीन्स टू डिसाइड. डीम मीन्स कंसिडर और रिगार्ड, मतलब आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो और आप ये समझते हो कि आपका हक है, डीम दैट मीन्स इट इज़ योर राइट.
और यू कंसिडर योर सेल्फ द राइट पर्सन, वो भी हम बोल सकते हैं. द न्यूज़ ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile, the priests in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. So ये जो न्यूज़ था ना, ये खबर जो था कि एक प्लेट ऑफ गोल्ड गिरा है बनारस में और ये उसी को मिलेगा जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यार करता है. तो ये न्यूज़ जो है एकदम लाइट के जैसा स्प्रेड हो गई. देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, रैन एज स्विफ्ट एज लाइट, जंगल के आग के तरह नहीं मैसेज दिया है. कभी भी कोई भी बात है ना, द न्यूज़ स्प्रेड लाइक द फायर इन द फॉरेस्ट, ऐसा हमने प्रोवर्ब्स हमेशा सुना होगा. बट ये है द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट, यानी कि माउथ टू माउथ ये न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंची और बहुत फास्ट पहुंची और दूर दूर से फिर लोग आने लगे. एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स. नोबल्स मीन्स रिच पीपल, जो रिच फैमिलीज़ में बॉर्न हुए हैं उन्हें हम नोबल्स कहते हैं. मुंशीज इन ब्रिटिश इंडिया में मुंशीज वो होते थे जो टीचर्स, स्पेशलाइज्ड टीचर्स कहा जाता था. हर्मिट्स मीन्स आप बोल सकते हो जिन्होंने दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़कर अपने आप को अलग रखा है, और जो रिलीजियस डिसाइपल होते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन अपने गुरु को फॉलो करते हैं, उन्हें हम हर्मिट्स कहते हैं. स्कॉलर्स वो जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, लर्निड पीपल वी कैन से, अ हाईली एजुकेटेड पर्सन. देन होली मैन वो होते हैं सेंट टाइप, जिसने सारी दुनियादारी सब कुछ छोड़ दी होती है. तो हर्मिट और होली मैन में यही डिफरेंस है कि हर्मिट आर एक्चुअली द फॉलोअर्स ऑफ दीज सेंट्स, और होली मैन मतलब ये टोटल सेंट होते हैं, या इन्हें हम एनलाइटेंड पीपल भी कहते हैं, जिन्हें नॉलेज अटेन हुआ है, गॉड्स डिवाइन नॉलेज अटेन हुआ है, उन्हें हम सेंट कहते हैं. तो होली मैन एंड ऑल रिनाउंड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडेड डीड्स, और वो सारे लोग जो बहुत ही वेल नोन थे या फेमस थे अपने अच्छे कामों के लिए. ग्रेशियस मीन्स फॉर गुड एंड काइंड डीड्स, है ना, जिन्होंने अच्छा काम किया है या प्लीजेंट काम किया है, लोगों को खुश किया है, लोगों की दुआएं ली है. तो जितने भी नोबल्स, मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होली मैन एंड जितने भी ग्रेशियस या स्प्लेंडेड डीड्स के लिए लोग जाने जाते थे, चाहे वो कोई भी कास्ट कैटेगरी से क्यों ना हो, ये सब के सब वहाँ पर आए, सबको ये न्यूज़ मिली. And meanwhile the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. और ये सारे के सारे लोग आते थे, अपने अपने डीड्स यहाँ पे प्रीस्ट के सामने सुनाते थे. और ये प्रीस्ट लोग जो है, these people they used to sit and listen to each and every person, कि जो उन्होंने काम किया है सीरियसली ये लोग सुनते थे, और फिर वो लोग डिसाइड करते थे कि किसका काम सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, सबसे ऊपर है. मेरिट बोल सकते हैं ना, किसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, या कौन सबसे ज़्यादा गॉड को लव करता है और इसीलिए उसने ये काम अच्छे से किया है. सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट. तो पूरे 1 साल तक ये क्लेमेंट्स आए और गए, अपने अपने डीड्स उन्होंने सुनाए और गए. एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, द प्रीस्ट्स बेस्टोड द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. So at last मतलब finally पूरा 1 साल लोगों की बातें सुन के और फिर उनके डीड्स को जज करके उन्होंने एक डिसीशन पे, सारे प्रीस्ट जो है दे केम टू अ डिसीशन. और पेशेंट वेइंग मतलब शांति से सुना, पेशेंस मतलब घाई में कोई डिसीजन नहीं लिया, है ना, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन इन अ हेस्ट, टेकिंग टाइम टू डिसाइड, लुकिंग एट ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डीड. हर चीज़ उसको देखकर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये प्लेट ऑफ गोल्ड किसे जानी चाहिए. तो उन्होंने एक आदमी को चूज़ किया कि इस आदमी ने अपनी सारी इस्टेट, सारी प्रॉपर्टी जो है पुअर में बांट दी है, पुअर लोगों को दान कर दी है. तो ये कितना प्यार करता होगा गॉड से, क्योंकि उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा और सब कुछ दान कर दिया. तो वही बेस्ट इंसान होगा.
अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ पार्ट ही, अपने प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट ही दान किया है, लेकिन इसने तो सारा का सारा दान कर दिया है। तो यही बेस्ट सूटेबल है, यही गॉड को प्यार करने वाला है। तो उन लोगों ने उस आदमी को बुलाया, और ये आदमी जो था, दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विद जॉय एंड एडवांस्ड टू टेक द गोल्डन प्लेट। और ये बहुत खुश था कि हाँ, मुझे गॉड ने सिलेक्ट किया है, प्रीस्ट लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है इस गिफ्ट को देने के लिए। तो इतना खुश था वो, और जैसे ही वो प्लेट लेने गया, एंड वेन लो एट हिज फिंगर्स टच, यानी एक्सक्लेमेशन, सडनली कुछ होता है, ऑल ऑफ अ सडन, कि जस्ट उस आदमी के फिंगर्स के टच से ही वो प्लेट जो है, गोल्डन प्लेट जो है, इट चेंज्ड इनटू अ बेसिस्ट लेड। बेसिस्ट मतलब द चीपेस्ट क्वालिटी मेटल। बेसिस्ट को हम बोल सकते हैं चीपेस्ट क्वालिटी, एंड लेड इज द लीस्ट मेटल, लोवेस्ट क्वालिटी मेटल। सो ऑल स्टूड अघास्ट, क्योंकि जैसे ही प्लेट टर्न हो गई लेड में, सारे के सारे शॉक्ड। बट वेन द हैप्लेस क्लेमेंट ड्रॉप्ड इट क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, हेवेंस गार्डन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड। अब वो आदमी जैसे ही प्लेट को छुआ, वो प्लेट जो है लेड में टर्न हो गई। सब लोग शॉक थे, वो आदमी भी शॉक था कि अरे ये क्या हुआ। और इसी शॉक में वो प्लेट जो है उसके हाथ से नीचे गिर गई। और लेड हमेशा जो है आवाज़ करते हुए गिरता है, क्लैंगिंग। मेटल जो है, लेड नहीं, या मेटल, कोई भी मेटल आप समझ लो, मेटल जो है जब नीचे गिरता है तो एक आवाज़ होता है, सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, ये प्रॉपर्टी है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो दे मेक दिस नॉइज, क्लैंगिंग। सो ड्रॉप्ड इट क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, है ना, जैसे ही उसने प्लेट को ड्रॉप किया, आवाज़ आया टन ऐसा। एंड हेवेंस गार्डन वॉज अगेंस्ट ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड। और ये हेवन का जो अमानत था हमारे पास में, वो वापस से एक शाइनिंग गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि वो नहीं चाहता है, गॉड नहीं चाहता है कि ये गिफ्ट उस आदमी को मिले जिसे वो दिया जा रहा था। ओके, तो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर नाउ। सो फार अनदर 12 months सेट ही प्रीस्ट्स एंड जज्ड। सो फार मतलब अभी तक पहले 12 months निकले, उन्होंने एक आदमी को चूज़ किया कि जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ दान में दे दी थी पुअर को, बट गॉड ने उसे अपना क्लेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो दूसरे 12 months मतलब सेकेंड ईयर भी पूरा पास हो गया, और प्रीस्ट लोग, अभी भी लोग आते थे, अपने डीड सुनाते थे। तो प्रीस्ट लोगों ने जज किया कि कौन हो सकता है बेस्ट, उन सब की बातें सुनकर। ऐसे 3 बार उन्होंने जज किया, थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस यानी 3 बार उन्होंने सबकी बातें सुनकर जज किया। एंड थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, और तीनों ही बार हेवन ने यानी गॉड ने रिफ्यूज़ कर दिया। यानी तीनों ही बार जैसे ही ये क्लेमेंट उस प्लेट को टच करते, वो प्लेट बेसिस्ट लेड यानी चीपेस्ट मेटल में टर्न हो जाती, और जैसे ही उनके हाथ से वापस से प्लेट लिया जाता या वो छोड़ देते, तो वो प्लेट वापस से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी। दैट मीन्स गॉड नहीं चाहते हैं कि ये प्लेट किसी और के हाथ में आए, ये प्लेट सिर्फ उसी के हाथ में जानी चाहिए जो वाकई में उन्हें बहुत प्यार करता है। Meanwhile, a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift. And well for them it was if gold be charity. पहले मैं यहाँ तक पढ़ा देती हूँ। तो meanwhile मतलब इतना समय निकल गया था, सभी लोग आ रहे थे, तो इसी बीच में बहुत सारे गरीब लोग, पुअर पीपल, मेम्ड बेगर्स। मेम्ड बेगर्स मतलब जिनका बॉडी का एक पार्ट जो है कुछ परमानेंटली यूजलेस हो गया है, यानी आप उन्हें बोल सकते हो अपाहिज, यू कैन से देम, परमानेंटली इट हैज़ बिन डैमेज्ड और क्रिपल्ड। सो मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर मेम्ड बेगर्स, है ना, बहुत सारे ऐसे गरीब जो यहाँ पे जमा हो गए थे, जो कोई चल नहीं सकता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के आंखें नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से जिनको तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, ऐसे लोग सारे जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, अपनाने से छोड़ दिया है कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसे सारे के सारे लोग स्ट्रीट पे आ गए थे। क्यों? ये लोग तो स्ट्रीट पे आए ही थे। ये लोग किस लिए आए थे? क्योंकि मंदिर हर कोई जा रहा था टेम्पल में अपनी डीड सुनाने कि मैंने कितना दान किया है, राइट।
और जब वो मंदिर जाते थे तो मंदिर में जितने भी बेगर्स होते थे सबको वो रुपए देते हुए जाते थे, कॉइन्स देते हुए जाते थे, ये जताने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो गॉड से कितना प्यार करते हैं और कितना दान कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए वो बेगर्स को दान में देते थे। और ये दान पाने के लिए ही सारे के सारे बेगर्स वहाँ जमा हो गए थे, यही सोच के कि जो भी आएगा वो दान तो देगा ही देगा, इसीलिए। So meanwhile, a host of poor, host means many, a lot of number, in a lot of great number, in hope to move that love, whereby, in hope to move that love मतलब लोगों के अंदर प्यार जगाने के लिए कि भाई हम गरीब हैं, हमको तुम थोड़ा सा दया दिखाओ हमारे ऊपर तो गॉड तुम पर दया दिखाएगा, ऐसा। whereby each claimant hope to win the gift and well for them it was if gold be charity। और हर क्लेमेंट जो भी यहाँ पे आता था वो यही सोच के आता था कि अगर मैं दान दूंगा तो गॉड शायद मुझे चूज़ करे अपना गिफ्ट देने के लिए, और क्योंकि अब गोल्ड गिफ्ट में मिल रहा है तो कौन नहीं करेगा चैरिटी करने पर अगर गोल्ड गिफ्ट में मिल रहा है तो एवरीवन वुड लव टू डू दैट चैरिटी। तो सारे पिलग्रिम जो है जो भी आ रहे थे वो भी यही काम कर रहे थे। फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड, तो हर पिलग्रिम जो है गॉड को प्रेज कर रहा था। दैट लव माइट थस अप्रूव इट सेल्फ बिफोर द टेस्ट, और इसीलिए वो जो है गॉड को प्रेज कर रहे थे ताकि उनका जो लव है गॉड के लिए वो प्रूव हो जाए। और किस तरह से प्रूव होगा उनका लव गॉड के लिए? बाय गिविंग आर्म्स टू द बेगर्स। तो बेगर्स को वो लोग कॉइन्स देते थे, पैसा देते थे, बहुत कुछ दान धर्म वहाँ पे बेगर्स को करते रहते थे। तो ये क्या उनको लगता था कि यहाँ पे बेगर्स को दान धर्म करने से हम गॉड को प्यार करने लग जाएंगे या गॉड हमें अपने गिफ्ट के काबिल समझेगा। सो फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड दैट लव माइट थस अप्रूव इट सेल्फ बिफोर द टेस्ट एंड सो कॉइन्स रेंड फ्रीली, है ना। तो इसीलिए कॉइन्स फ्रीली आते थे उनके हाथ से कि चलो इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, सबको दे दो, जितना भी हमारा जेब है पूरा खाली कर दो। तो थोड़े से पैसे देकर वो गोल्ड का प्लेट लेना चाहते थे। बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न्ड टू लुक इनटू द पुअर सैड आइज ऑफ देम दैट बैड। लेकिन जो भी लोग आते थे यहाँ पे दान धर्म कर रहे थे, पूरा दान दे रहे थे, लोगों को कॉइन्स दे रहे थे, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिन पुअर बेगर्स को वो दान दे रहे हैं एक बार उनकी आंखों में भी झांक के देखे कि वो कितने उदास है। सो नन ऑफ देम टर्न्ड टू लुक इनटू द पुअर सैड आइज, कि उनकी आंखें कितनी उदास है, किसी ने कोशिश नहीं की उन्हें देखने की। देखिए ये जो फोटो है ये बता रहा है कि किस तरीके से 3 बार ये गोल्ड जो है, गोल्डन प्लेट जो है दी गई थी क्लेमेंट्स को। 3 बार डिसाइड किया गया था कि ये बेस्ट होगा, लेकिन जितनी बार भी ये लोग छूते थे उतनी ही बार ये प्लेट जो है गोल्ड से बेसिस्ट लेड में कन्वर्ट हो जाती थी। एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ड बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय होम सो एवर टच्ड वॉज टर्न टू लेड, है ना। तो दूसरा साल भी पास हो गया, लेकिन अभी तक इस प्लेट को क्लेम करने जो भी आया और उसने उस प्लेट को टच किया और टच करते ही वो प्लेट जो है बेसिस्ट गोल्ड में टर्न हो जाती थी। एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पीजेंट, एट लेंथ मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देयर केम अ सिंपल पीजेंट not aware of that strange contest for the gift of God to pay a vow within the temple। तो वो ये जो पीजेंट था उसे इस कॉन्टेस्ट के बारे में तो पता ही नहीं था। अब देखो क्या आयरनी है यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्टेस्ट। अभी गॉड ने जो गिफ्ट भेजा है अर्थ पे अपने जो भी गॉड से ज़्यादा लव करता है तो वो गॉड का ब्लेसिंग है उस आदमी के लिए। एक कंपटीशन नहीं है कि वो ब्लेसिंग चलो हम ज़्यादा दान धर्म करेंगे ये ब्लेसिंग हमको मिल जाएगी। इट इज़ नॉट अ कंपटीशन। अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसे ही करने लग जाता और वो गॉड का गिफ्ट आसानी से पा सकता था। तो दिस इज़ अ वेरी आयरनी द पोएट हैज़ यूज्ड ओवर हियर। सो दिस पीजेंट हु केम ओवर हियर ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि ये कॉन्टेस्ट चल रहा है कि जो भी ज़्यादा दान करेगा उसको ये गिफ्ट ऑफ गॉड मिलेगा। तो ये कॉन्टेस्ट के बारे में इस पिलग्रिम को, इस सिंपल पीजेंट को कुछ पता नहीं था। पीजेंट मीन्स ही वॉज जस्ट अ सिंपल फार्मर, जस्ट अ कॉमन मैन।
नॉट अ रिच नोबल और हर्मिट और मुंशी, नथिंग, एक जस्ट छोटा सा मामूली सा आदमी था और उसे बिल्कुल इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता नहीं था। वो तो टेम्पल में सिर्फ इसलिए आया था टू पे अ वाव विद इन द टेम्पल, टू पे अ वाव विद इन द टेम्पल, दैट मीन्स to take the blessings of the god, that the god can give him strength and with that strength he can help the poor. तो वो यहाँ पे इसीलिए आया था कि ये जो है आदमी एक, मतलब यहाँ पे जो पुराने इज़राइल्स थे, नॉर्मली इज़राइलीज थे, वो ये वाव लेते थे गॉड के सामने दैट दे विल गिव वन सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द गॉड. टू वाव मतलब टू पे अ वाव मीन्स टू गिव वन सेल्फ और टू सरेंडर वन सेल्फ एंटायरली टू द सर्विस ऑफ द गॉड. मतलब अपने आप को कंप्लीटली गॉड के सर्विस में, मतलब पुअर पीपल के सर्विस में अपने आप को पूरी तरह से लगा देना, अपने आप को पूरी तरह से उसी चीज़ में झोंक देना, उसे कहते हैं टू पे अ वाव. यानी ये पीजेंट भी इसीलिए आया था गॉड से ब्लेसिंग लेने कि वो जो भी काम करता है गरीबों के लिए, जो सर्विस कर रहा है, उसमें कोई कमी ना हो. सो टू पे अ वाव विद इन द टेम्पल, वो वहाँ टेम्पल इसीलिए आया था. एज ही पास्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिवल्ड बेगर्स, ऑल हिज सोल वॉज मूव्ड विद इन हिम टू स्वीट पिटी एंड द टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज. अब जैसे ही वो इस जब वो टेम्पल आ रहा था तो उसने देखा बहुत सारे बेगर्स लाइन में बैठे हैं. तो ये जो बेगर्स थे इनके लिए वर्ड यहाँ पे दिया गया है श्रिवेल्ड. श्रिवेल्ड मतलब धूप में खुले में रहकर पूरा जो बॉडी है बेगर्स की वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, या कोई पतले हो चुके हैं, या प्रॉपर उनको नरिशमेंट नहीं मिला है, या फिर आप बोल सकते हो व्रिंकल्ड, जो हम बोलते हैं ना धूप में रहने से ज़्यादा व्रिंकल्ड आ जाते हैं. और द पीपल हु कैनॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स ड्यू टू इवन बेसिक लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, एंड उनके पास मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इसीलिए वो अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते. इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया श्रिविल्ड. श्रिविल्ड मीन्स यू कैन से ड्राई और रिंकल्ड, मतलब पूरी झुर्रियाँ आई हुई हो फेस में, जो धूप में काले काले हो जाते हैं, एकदम सूख जाते हैं, पतले पतले से हैं, माल नरिश्ड लगते हैं, वो हम बोल सकते हैं. तो इसी टाइप के बेगर्स थे सारे के सारे. तो इन सब बेगर्स को देखकर ये पीजेंट जो है पूरी तरह से हिल चुका था, मतलब हिज सोल वॉज मूव्ड, उसकी पूरी अंतरात्मा एकदम झकझोर गई थी. विद इन हिम टू स्वीट पिटी, और दया से पूरा भर गया था उसका मन. एंड द टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज, और आंसू जो है उसके आंखों में भर आए पूरी तरीके से. तो ये बहुत ही मूव्ड हो गया था, बहुत ही उसके दिल को छू लिया था इस बात ने कि ये कितने गरीब है, कितने दुखी है, कितने तकलीफ में है. नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ पुअर सोर क्रिएचर, ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल. बट व्हेन द पीजेंट केम एंड सॉ द साइटलेस फेस एंड ट्रेम्बलिंग मेम्ड हैंड्स, he could not pass, but knelt and took both palms in his and softly said, O thou my brother, bear thy troubles bravely. तो अब जो है जैसे ही ये इस लाइन से पास होते होते इस टेम्पल गेट के पास आया तो वहाँ पर उसे एक गरीब सा आदमी वहाँ पे दिखाई दिया. पुअर सोर क्रिएचर, सोर मतलब जिसका कोई बॉडी पार्ट दुखता हो, तकलीफ देता हो, उसे दर्द में भरा हो, और वो ब्लाइंड था, मतलब देख नहीं सकता था. एंड शन्ड बाय ऑल, शन्ड मीन्स रिजेक्टेड बाय ऑल, किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं, सब ने उसे छोड़ दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते. तो ऐसा टाइप का एक पुअर सोर ब्लाइंड क्रिएचर वहाँ पे था. तो जब पीजेंट वहाँ पर आया और इस पीजेंट ने उस साइटलेस फेस को देखा, साइटलेस मीन्स द पर्सन हु कैनॉट सी, साइटलेस मीन्स द पर्सन हु कैनॉट सी, मतलब विदाउट साइट, साइट मतलब आइज, विजन. तो ब्लाइंड हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोला ही है कि वो ब्लाइंड है. तो जैसे ही पीजेंट आया उसने जब इस साइटलेस फेस को देखा और जो देखा कि वो किस तरह से ट्रेम्बल, शिवर हो रहा है, और उसके हाथ मेम्ड हैंड्स किस तरह से अपाहिज हो रखे हैं, मतलब मे बी लकवा मार रखा हो उसका, या हाथ प्रॉपर नहीं हो. सो ही कुड नॉट पास. अब वो उस आदमी को देखकर वहाँ से आगे पास ही नहीं हो पाया. अभी इतने श्रिवल्ड बेगर्स उसने देखे मंदिर के गेट के बाहर, वहाँ से वो देख देख कर उसको मन बहुत उदास हो गया था, लेकिन वो वहाँ से निकला.
लेकिन यहाँ पे जब टेम्पल गेट के सामने इस आदमी को देखा तो यहाँ से तो वो आगे जा ही नहीं पाया और वो वहीं बैठ गया उस आदमी के पास में। ही नेल्ट एंड उस आदमी के दोनों हाथ उसने अपने हाथ में लिए, बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली, दया से, जैसे कोई अफेक्शनेट हैंड हम बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको लव करते हैं तो कितना अफेक्शनेट हमको लगता है हाथ उनका। सो बिल्कुल उसी तरीके से उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और सॉफ्टली, धीरे से कहा, ओ दाओ माई ब्रदर, मतलब उसने उसे अपना भाई कहा। ओ दाओ, ओ यू, दाओ इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर यू। हाँ, माई ब्रदर, बेयर दाई ट्रबल्स ब्रेवली। दाई इज योर, दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, आर्किक वर्ड। बेयर दाई ट्रबल्स ब्रेवली, मतलब जो भी तुम्हें तकलीफ है उसका पूरी बहादुरी से सामना करो। गॉड इज़ गुड, भगवान सब देख रहा है, गॉड इज़ गुड, वो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे तुम्हारे लिए। तो तुम अब बहादुरी से सामना करो इस चीज़ का, जो भी तुम्हें तकलीफ़ है। गॉड देख रहा है और गॉड बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करेगा। मतलब ये वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, वर्ड्स ऑफ अफेक्शन मीन्स अ लॉट। आज कोई भी तकलीफ़ में होता है तो हम अगर उन्हें कुछ सांत्वना भरे शब्द कहते हैं या हम उनके तकलीफ़ में उनके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, सहानुभूति तो गलत हो जाएगा, हम उनसे अगर बात करते हैं तो उन्हें हल्का महसूस होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि हाँ, हमारे तकलीफ़ में कोई है हमारे साथ में। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बैठा था उस आदमी के साथ में, उस बेगर के पास में, और फिर बाद में वहाँ से उठा। देन ही अरोज एंड वॉक्ड स्ट्रेट वे अक्रॉस द कोर्ट, और फिर वो उठा और सीधा टेम्पल कोर्ट के अंदर गया, मतलब जहाँ से टेम्पल शुरू होता है, मंदिर का जो परिसर टेम्पल के अंदर का। एंड एंटर्ड वेयर दे रेंगल्ड ऑफ देयर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट, और फिर वो उस जगह पे गया जहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए हुए थे ना, मिड डे आवर्स में जो आते हैं, जो अपना क्लेम करने के लिए गॉड्स गिफ्ट, तो वो दे रेंगल्ड मतलब आर्ग्यूड एंग्रीली। दैट मीन्स गुस्से में बता रहे थे, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो ये प्लेट ऑफ गोल्ड मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतना बड़ा दान किया है। तो वो अपने दान को इस तरह से बता रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। नॉर्मली हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो दान ऐसा होना चाहिए कि अगर आप देते हो, जिस हाथ से दान देते हो, तो दूसरे हाथ को उसके बारे में, उस दान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो दान वही होता है, असली दान वही होता है जब हम उसे डिक्लेयर ना करें लोगों के सामने कि हमने दिया है। अगर आपने उसे डिक्लेयर कर दिया तो वो दान का कुछ मतलब नहीं रह जाता। देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस गिवन टू दैट डोनेशन। सो बट द पीपल ओवर हियर, दे वर फाइटिंग ओवर, सी आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, सो दे वर ऑल रॉन्ग। दिस पुअर मैन, जो ये पीजेंट यहाँ आया था ये देखने के लिए, तो जब उसने देखा ये सब, क्योंकि वो उसी जगह से पास हुआ ना जहाँ पर सारे प्रीस्ट बैठे थे और ये आदमी लोग भी सब बहस कर रहे थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो ये सब अपने डीड्स ऑफ लव बता रहे थे बिफोर द प्रीस्ट। अभी वो डीड्स ऑफ लव है कि क्या है वही जाने। तो देवर रेंगलिंग मीन्स देवर आर्ग्यूइंग एंग्रीली विद द प्रीस्ट। अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए तो यू नेवर हैव टू आर्ग्यू। अ वाइल ही लिसन्ड सैडली देन, थोड़ी देर के लिए तो वो वहाँ खड़ा था और बहुत बुरा लग रहा था उसे। ही लिसन्ड सैडली, हैड टर्न्ड अवे, बट समथिंग मूव्ड द प्रीस्ट हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बेकॉन टू द पीजेंट। तो जैसे वो थोड़ी देर तो सुन रहा था लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था इस बात का, और फिर बाद में वो उदास होकर वापस से जाने लगा। जब वो टर्न होने लगा, जब वो जाने लगा, तो द प्रीस्ट, जब प्रीस्ट ने देखा तो पता नहीं समथिंग मेड द प्रीस्ट टू कॉल दैट मैन अगेन। प्रीस्ट को कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उस आदमी को वापस बुलाना चाहिए। तो प्रीस्ट ने उस आदमी को वापस बुलाया, पेजेंट को वापस से बुलाया। यानी जब वो जाने लगा पेजेंट, वापस से जब वो पेजेंट जाने लगा, तब प्रीस्ट ने उसे वापस कॉल किया। सो ही केम नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेड एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड एंड टुक द सेक्रेड वेसल। तो उसने वही किया, जैसे प्रीस्ट ने उसको बुलाया तो ही ओबेड एंड ही वेंट बैक, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट स्टिल ही वेंट देयर
एंड प्रीस्ट उसको जो दे रहे थे उसके लिए उसने अपने हाथ आगे किए. ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड एंड टुक द सेक्रेड वेसल. सेक्रेड, होली, प्योर, है ना. सेक्रेड मीन्स समथिंग प्योर, समथिंग होली. Vessel means that plate. That plate is called that vessel. Lo, it shine with thrice its former. Now यहाँ पे ये जो lo है, this is an exclamation you can see, and it is used to draw attention to an interesting or amazing event. है ना, ये एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इवेंट ही था. इतने बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे प्लेट को क्लेम करने के लिए, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं कर पाया. सबके छूते ही वो बेसिस्ट लेड में कन्वर्ट हो जाती थी. लेकिन ये तो एकदम अलग था. ये प्लेट एकदम गोल्ड में कन्वर्ट हो गई. एंड अमेज देम ऑल, और सबके सब शॉक्ड, हैरान. सन, क्राइड द प्रीस्ट, रिजॉइस, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज दाइन. प्रीस्ट भी खुश थे फाइनली कि 2 साल लग गए, 3 साल हो गए और अब जाके हमें इसका क्लेमेंट मिला है. क्योंकि जैसे ही प्लेट उसके हाथ में आई वो 3 गुना ज़्यादा और चमकने लग गई. तो प्रीस्ट इतने खुश थे कि फाइनली उनका जो काम था, उनको दिया गया था, इतना बड़ा काम था कि गॉड से आई हुई गिफ्ट उनको सही क्लेमेंट तक पहुंचानी थी, और उन्होंने वो काम कर दिया था. तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी, दे ऑल वर रिजॉइसिंग. एंड उन्होंने कहा उस पीजेंट को कि लो बेटा, ये गिफ्ट तुम्हारी है, गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस इज़ फॉर यू. दाउ लवेस्ट बेस्ट, तुम ही गॉड को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो. एंड ऑल मेड आंसर्स, इट इज़ वेल. और फिर सभी लोग बोलने लगे, हाँ हाँ सही है, इसके हाथ में गिफ्ट आई और चमकने लग गई तो यही आदमी सही होगा. ऑल मेड आंसर्स, इट इज़ वेल. एंड वन बाय वन डिपार्टेड, और सारे के सारे लोग एक एक करके वहाँ से निकल गए. बट द पीजेंट नेल्ट एंड प्रेड, लेकिन जो पीजेंट था वो वहाँ से नहीं गया. वो वहीं पर नील डाउन हुआ गॉड के सामने. नेल्ट, देयर ओनली ही नेल्ट एंड प्रेड, बोइंग हिज हेड अबाउट द गोल्डन प्लेट. यानी उस प्लेट को उसने प्लेट के सामने अपना सर झुका दिया, क्योंकि वो प्लेट गॉड की थी ना. तो गॉड का कोई भी चीज़ होना मतलब दैट इज़ इक्वल टू गॉड ओनली. और हम गॉड के सामने अपना सर झुकाते हैं, तो पीजेंट ने भी गॉड के सामने अपना सर झुकाया. बोइंग हिज हेड अबाउट द गोल्डन प्लेट वाइल ओवर हिज सोल लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड. और जैसे ही उसने इस प्लेट को अपने सर पे लगाया, मानो ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर पूरा लाइट, जैसे गॉड का ब्लेसिंग्स होता है. हम कई बार देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, किसी के ऊपर कोई ब्लेसिंग रहता है तो एकदम लाइट हो जाता है, उसकी पूरे बॉडी पे लाइट रोशनी फैलती रहती है. तो बिल्कुल उसी तरीके से. एंड वाइल ओवर हिज सोल लाइक मॉर्निंग, जैसे सुबह की किरणें कैसे आती है, उजाला होता है एकदम से, है ना, यू कैन सी द रेज ऑफ लाइट. तो उसी तरीके से दैट स्ट्रीम्ड लाइट जो आने लगी उस प्लेट में से, द लव ऑफ गॉड, एज इफ द गॉड हैज़ ब्लेस्ड दिस मैन. So, a very beautiful poem by James Henry Leigh Hunt. तो इसी के साथ हमारी पोएम एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है. द पोएम एक्सप्लेनेशन इज ओवर. द आंसर्स यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So thank you for now. Thank you for listening. Soon we'll meet